Hello students, in the last one lecture we have started our discussion about the first one paper of your BSc first semester, that one is mechanics. While discussion about the mechanics, we have divided the mechanics into two basic branches. First one is static branch and second one is dynamic branch. तो static branch आपके पास क्या थी, जो in which the objects, macroscopic object, either at the rest position or they are moving with the constant velocity. Or in case of a dynamics branch, the macroscopic objects are in motion. Further, we divided the dynamics into the two parts, kinematics and kinetics. Kinematics के अंदर आपके पास forces are not responsible for their motion, and in case of a kinetics, the forces are responsive. We take the reference of the forces due to which the macroscopic object is in motion. At the end of the last one lecture, we are discussing about the elementary term which you have studied in your class +1 and +2. That one is velocity, instantaneous velocity, and momentum. In today's discussion, we will start our lecture with the previous one definition. That one is the definition of a velocity. As all of us know that velocity is the rate of change of displacement. We have already discussion about the difference between the distance and displacement and how they are correlated with each other. कैसे वो एक दूसरे से रिलेशन में जुड़े हुए थे, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. तो वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. और मोमेंटम हमने पढ़ा था मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, दैट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय p. In today's discussion, we will start our lecture with the mechanics of particle. While discussion about the mechanics of particle, let us consider the object is moving along a, let us pause this one. This one is the x-axis, this one is y-axis, and this one is z-axis. This one is the O is the origin point, and object is moving along this one curve starting from a point A to point S. Let us suppose at a particular time, when we start our time measurement, t time के ऊपर object is at a point A. तो this one is the position vector of OA. OA आपके पास क्या था, position vector. Now at a particular instant of time, let us suppose the object is at a location B with the position vector r1 and finally reaches at a point C. This one is the displacement vector. r2 is the OB is the equal to r1 is equal to position vector of point B, and OC is equal to R2 position vector of point C, and BC is the displacement vector. तो यहाँ से अगर हमारे पास हमने वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी किस चीज के बराबर आएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल टू dr अपॉन dt, वेयर r क्या है, पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर किसका, अगर पॉइंट A के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो O r पोजीशन वेक्टर है, और अगर पॉइंट B के ऊपर है तो r1 पोजीशन वेक्टर है. इफ द फाइनली वर्टिकल रीचेज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट C with the position vector r2 and B and C is BC is representing the displacement vector. Now in triangle OBC, we know that according to the vector law of addition, OB प्लस BC इज इक्वल टू OC. OB की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1. इसकी वैल्यू कितनी है BC की,
let us suppose delta s is the representing the displacement vector is equal to OC is equal to R2. तो delta s is equal to R2 minus R1. Let us suppose this one equation number first and this one equation number second. तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमें क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 ये वाला वेक्टर माइनस ये, तो किस चीज की वैल्यू देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू देगा. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 minus R1 upon dt. We have substituted dr is equal to R2 minus R1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dr. ds को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं. तो R2 minus R1 और is equal to डेल्टा s by इसको डेल्टा t लिख. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी as per our last one lecture discussion, instantaneous velocity is the velocity of an object at a particular instant of time. तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में v is equal to limit delta t tends to 0 delta s divided by delta t. तो अगर आपके पास टाइम इंटरवल छोटा होगा तो उसके केस में ओ डेल्टा s की वैल्यू है जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए, तो ये उतना ही स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास. तो हमने यहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है. लेट अस सपोज दिस वन इक्वेशन नंबर थर्ड. तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमें रिप्रेजेंट करके बता रही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt. नाउ एज पर द लास्ट वन लेक्चर डिस्कशन वी हैव डिस्कस अबाउट द लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या था आपके पास, P is equal to mass multiplied by velocity. Let us suppose equation number 4, where m is the mass of the object, v is the velocity with which the object is moving. So product of mass multiplied by velocity will give the value of momentum. Now according to second law, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, क्या था हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इज अकरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt. लेट अस सपोज दिस वन इक्वेशन नंबर फिफ्थ. वी कैन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 in equation number 5th. Means put equation 5th in 4th. क्या आएगी आपके पास वैल्यू, f is equal to d mass multiplied by velocity divided by dt. We know that mass is a constant quantity, कभी भी चेंज नहीं होगी, तो कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, dp अपॉन dt. Force is equal to, let us suppose sixth one equation, dv upon dt. हमने क्या पढ़ा हुआ है, that one is acceleration. We know that dv upon dt is equal to acceleration. ये क्या है हमारे पास, acceleration है. तो इसको मैं let us suppose सेवंथ मान लेता हूँ. सेवंथ को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट कर देंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू m dv अपॉन dt इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलेरेशन. इसको 8th नंबर इक्वेशन हमने सपोज कर दिया. तो हमें क्या पता है, एक्सेलेरेशन we also know that acceleration is equal to dv upon dt. और इसको क्या लिख सकते हैं, d upon dt dr upon dt.
डी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका, डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी हमें क्या पता है किस चीज क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। लेट अस सपोज दिस वन इक्वेशन नंबर 9. We can compare which one equation, equation number 8 and equation number 9. Now comparing equation 8 and 9, तो क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन और मास dr स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। लेट अस सपोज दिस वन इक्वेशन नंबर 10. तो इक्वेशन नंबर आपके पास जो 10th है दैट वन इज, हम क्या कह सकते हैं, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द मोशन और वी कैन से द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इन टुडे डिस्कशन वी विल डिस्कस up to this one point. Once again I am briefing my today lecture. What we have discussed in today lecture is that one about the mechanics of a particle. While discussion about the mechanics of a particle, we have started a macroscopic particle is moving along the line A to S. जब पार्टिकल A पॉइंट के ऊपर था, टाइम क्या था t, तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना था r. दिस वन इज इक्वल टू r पोजीशन वेक्टर OA. फिर आपके पास किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल किस पॉइंट के ऊपर पहुंचा, बी पॉइंट के ऊपर, दिस वन. फिर आपके पास पार्टिकल कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा, सी के ऊपर, पोजीशन वेक्टर क्या था आपके पास r2. और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको हमने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा s. बाय considering this one point we have started our lecture कि velocity is equal to v dr upon dt. तो from triangle OBC according to vector law of addition आपके पास OB plus BC की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू डेल्टा है, इसकी वैल्यू R2. तो what we have find out that one is the value of डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया. तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई थी उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो आपके पास ds अपॉन dt आ गई. अगर इसको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने किस तरह डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो उसके केस में टाइम इंटरवल जितना छोटा हो सकता है उतना ले सकते हैं हम. तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. तो इसके बाद हमने क्या किया, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड दिस वन चेंज इज अकरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो फोर्स को यहाँ पे P की जगह हमने इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू रख ली. तो m dv अपॉन dt, m को बाहर ले लिया, dv अपॉन dt. वी नो दैट dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हमने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 दे लिया. अब एक्सेलरेशन हमें पता है, या तो वेलोसिटी के फॉर्मेट में dv अपॉन dt लिख सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मेट में डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस वन इज आल्सो एक्सेलरेशन. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 8th एंड 9th वी विल गेट इक्वेशन नंबर 10th. इक्वेशन नंबर 10th इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ मोशन, which one is a second order differential equation. Thank you students.